So let us come back to the illustration. So as per the information given by them, what they are trying to say is that a small company limited has 3 production departments and 4 service departments. Okay, the expenses for these departments as per primary distribution summary were. So what they are trying to say is that primary distribution wala part is already being done by them only. The thing that we were doing in our previous lecture, in the previous lecture we had solved 2 illustrations wherein they had given us so many expenses, and we had distributed all those expenses between the production departments and service departments, which was actually nothing but primary distribution. Now here in this case they are already done with the primary distribution. Okay, that is why what they are saying is the expenses for these departments as per primary distribution summary were. And if you talk about production departments, there are 3 departments, A, B, and C, and the total costs are also already here available because the primary distribution wala part is already done. So they are aware that department A needs to recover 15,000 of cost, B needs to recover 13,000 of cost, and C needs to recover 12,000 rupees of cost, totaling to a 40,000 rupees total cost. Talking about service departments, though there are 4 service departments as mentioned in the question. Okay, one is store, the second is timekeeping, canteen, power, and their respective expenditures are also given over here. Okay, so primary distribution of the part is already done. The following information are also available in respect of the production departments. Okay, so horsepower of machines, as far as if you talk about horsepower, department A has consumed 300 horsepower of machines, department B has consumed 300 horsepower, as well as department C has consumed 200 horsepower of machines. Okay, all the departments have different level of consumption depending on what they are actually doing. Okay, next is number of workers. So there are different workers in different departments. In department A it is 20, in B and C there are 15 workers. Value of stores requisitioned, where in department A it is 2,500 and department B and C it is 1,500 and 1,000. What they are asking is apportion the cost of the various service departments to the production department. What they're actually trying to say is once we are done with the primary distribution, what we are supposed to do is secondary distribution. What is secondary distribution? I had explained it in brief during our very first lecture only. Secondary distribution is nothing but reallocating the expenses which have been actually allocated to service departments. Like for example, these are 4 service departments and they have been allocated certain expenses over here. But as we all know that service departments, they are unproductive departments and they just incur cost. Like here these are some of the costs that have been incurred by the service department, but they cannot recover these costs as no revenue is being generated from these service departments. So what ultimately we have to do is we have to reallocate these service departments cost to production department's cost. So in short, what I'm trying to say is these expenses need to be reallocated to all these production departments. So in short, what will happen is currently if department A is being charged with 15,000, then after secondary distribution this will increase to some other amount because now service department will also get added in this 15,000. Same is the case with department B and department C also. So every production department's cost will increase by some amount because now they will not only recover their expenses, but they will also try to recover service department's expenses, as we all know, because service department cannot recover the cost incurred by them. Now the question is, how do we distribute these expenses of service department to various production department? Well, that is the reason why they've given us these informations. Okay, so based on these information, we will consider these as the basis to distribute the service department cost to this production department. So in short, what we're going to do in this question is we're going to do secondary distribution. Primary distribution is already done with. We're not supposed to do primary distribution. We're only supposed to do secondary distribution, that is reallocating the expenses which were originally allocated to service departments to the production departments. Okay, so I hope I'm clear till now. If you've got any queries, any doubt, if someone is not able to understand what I'm trying to explain, can ask me whenever he or she feels right. Okay. So now what I'll do is
we will have to prepare a statement of secondary overhead distribution. So for that, I will prepare a format wherein we will be solving this. I hope you all have had a good look over the question, because now the question will be minimized a little bit so that we can make space for the solution over here. The space is limited, so that is an issue. Secondary overheads distribution summary, also you can call it. You can also call it as a statement. Doesn't matter, whatever you call it. What matters is the final calculations. Okay. Particulars, basis on which the expenses will be distributed amongst the production department, total expenses, and then 3 columns for the 3 production departments. I'll try to make straight lines as much as it is possible for me. Okay. Meanwhile, you all can also draw your formats along with me. It being a practical subject, you will have to practice. You will not be able to solve the sums right unless and until you actually practice them. So it is better not to waste time, and when you are actually attending the lecture, also practice with me. Fine. So I'm ready with my format. So we will start distributing the service expenses one by one. So there are 4 service departments. So we will be starting with the first one, that is stores. So first we will be distributing the expenses which were originally being allocated to the stores department. The total expense which needs to be distributed is rupees 2000 for stores. Okay, 2000 rupees, which we need. Sorry, I written it in the basis column. I was supposed to write it in the total column. 2000. Now, on what basis will I distribute this expense of 2000 amongst the various production department? That is a question. So that we will be deciding on the basis of the basis given and the service department available with us. Well, if you talk about stores, out of the given information, horsepower, number of workers, and value of stores requisition, what is more relevant is value of stores requisition. So this can be taken as a valid basis for distributing stores expense to various departments. So this is what we're going to take as our basis. Stores requisitioned. Stores requisition will be taken as a basis. Now, how to distribute, that we all are aware about. We have done in this. We have done this in our previous lecture also. What we will first do is we will take a total of this. Okay, and then we will divide it with the expenditure. Like for example, what is the total? Total is 2,500 plus 1,500 plus 1,000. That is 3, 4, 5,000 rupees. So total is 5,000. Is we're doing working note for stores. Okay, if you talk about stores requisitioned, total is
5,000. So if the total is 5,000, then in that case, the total expense is how much? 2,000. Now, if I want to find it for department A, then department A is taken only 2,500. You can simply cross multiply and find the portion of department A. That can be worked out very easy. In the previous lecture, many students were giving answer. Okay, here also students have started giving answer. Okay. Yes, answers are correct. All those who have given answers are correct. Kinjal, Shivam, all of them have given correct answers for all the three departments. So if you cross multiply it, it will for A it will come rupees 1,000. For B it will be rupees 600, and for C it will be rupees 400. So we have distributed the expenses of stores amongst the production department. Now coming to the, yes, Gayatri, correct answer. Shivam has also given correct answer. Coming to the next expenditure, I'll also work out over here for you all to know, find out. Okay, stores have done. Now I'll be doing it for the another service department, that is timekeeping. We will write it over here also. Timekeeping. What is the total amount to be distributed for timekeeping? Rupees 1,500. Well, what could be taken as the basis for timekeeping? Well, timekeeping is an area where the workers can go and relax for some time. So obviously, a number of workers could be a better basis for them or to be distributed. So number of workers will be taken as the basis for the expenses of timekeeping. Okay, second working note, timekeeping. Fine. Number of workers. What is the total of number of workers? Okay, I'm sorry, I put an extra zero over here. Okay, it's 400. What is the total of number of workers? Number of workers, we will take a total 20 plus 15 plus 15 is 50. Okay, so if there are total 50 workers, then the total cost to be for the timekeeping is 1,500. If you talk about department A, then in case of department A, there are how many workers? 20. टोटल क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, लाइक अगर 50 वर्कर है तो 1,500 का खर्चा हो जाता है, तो अगर सिर्फ 20 वर्कर होंगे तो कितने का खर्चा होगा, दैट वी विल बी राइटिंग ओवर हियर. सो अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर वुड कम टू 600. Yes, all those who have worked out have given correct answer. Very good. 600. Then 450. And then again 450. Yes, Deepa has given correct answer. Gayatri has given correct answer. Then who else has given answers? All the others have also given correct answers. Fine. So we have distribute basis. In the basis, we will write number of workers. Okay, coming to the third service department, which is the third service department. Well, it is canteen. When canteen, for canteen also, out of the available information, I guess number of workers would be the best basis, because again canteen service will be utilized by the workers only. So we will be considering the same as our basis over here, number of workers. Okay, total is how much? Total cost is only rupees 500. Okay, 500. Number of workers, we know that they are 50. So using the same method, if you do cross multiplication, then it will come to around 200 for department A, 150 and 150 for department B and CS. All those who have worked out have given correct answers again. Very good. Coming to the
fourth and the last service department, it is power. What could be the basis for distribution of this expense? It could be HP of machines, horsepower of machines. Okay, so that what I am taking as basis over here. So we will again take a total of horsepower of machines, 300 plus 300 plus 300 is 800. Okay, so for if you are using for 800, the total expense is how much? 800. Then how much for 300? Obviously, it will be 300 only. Cross multiplication, this can be done orally actually. So for A, it will be 300. For B also, it will be 300. For C, it will be 200. Total is 800. And for A, it will be 300. For B, it will be 300. And for C, it will be 200. Okay, so now these are the costs which for which were earlier allocated to service department have now been added to the production department of A, B, and C, and also along with this the primary cost which already जो पहले से डिपार्टमेंट A, B और C को प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन करके जो कॉस्ट एलोकेट किया गया था वो तो उनको कलेक्ट करना ही है. प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू जो दिया था क्वेश्चन में दिया था ना, टोटल 40,000 का खर्चा है, उसमें से ए के लिए 15,000 था, बी के लिए 13,000 एंड सी के लिए 12,000. तो ये तो उनको पहले से रिकवर करने ही थे. इनके अलावा उनके ऊपर ये एक्स्ट्रा बर्डन आ गया सर्विस डिपार्टमेंट का भी, क्योंकि सर्विस डिपार्टमेंट तो खुद का खर्चा खुद रिकवर नहीं कर पाता, तो उसका उनके हिस्से का खर्चा भी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को ही रिकवर करना पड़ता है. So now we will take a total of the overheads, total overheads which needs to be collected by A. Department A is 17,100. पहले 15,000 था, अब 17,100 हो गया. B के लिए 14,500 and C के लिए 13,200. Total, the grand total would be 44,800. So a very simple sum wherein we have done secondary distribution. I just hope you all are able to understand what I tried to explain, and also you are understood the calculation. ठीक है, कॉपी कर लो सॉल्यूशन को. I'll wait for some time. Meanwhile किसी को अगर कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो लेट मी नो.
Okay, so I hope all are done with the problem. जो कॉपी कर रहे थे उन्होंने कॉपी कर लिया होगा. So now we will move on to the next problem. ठीक है, ये अगला प्रॉब्लम है हमारा. दो इमेजेस है लेकिन सम एक ही है, दो अलग अलग पेज पे था तो मैंने दो फोटोज खींच के डाले यहाँ पे. So reading the question, M and company has three production departments and two service departments. The expenses are as given below. ठीक है, हमको कुछ expenses दिए. The following information is available. उसके बाद information में क्या दिया है? Production departments, तीन production department जो है उनका नाम है machine shop, assembly shop, finishing department, and जो दो service department उनका नाम है stores, repairs and maintenance. तो ये सारे कुछ बेसिस का इंफॉर्मेशन दिया है जिनके बेसिस के ऊपर हम ये वाले जो एक्सपेंसेस है उनको हम लोग प्रोडक्शन और सर्विस डिपार्टमेंट के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, जिसको हम लोग प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं. ठीक है, तो पार्ट ए में वही पूछा उन्होंने, प्रिपेयर द प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन स्टेटमेंट यूजिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट बेसिस फॉर अपोर्शनमेंट. ठीक है, जो हम लोग कर लेंगे, पहले भी किया हुआ ये. फिर सेकंड पार्ट में क्या बोला है? द मशीन शॉप, असेंबली शॉप एंड फिनिशिंग डिपार्टमेंट, यानी कि तीन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की बात कर रहे हैं. हैव इशूड stores requisitions in the ratio of 9:6:5 and repairs request in the ratio of 2:3:1. Prepare the secondary distribution statement on non-reciprocal direct distribution basis. यानी कि पार्ट टू में they are also asking us to do secondary distribution, मतलब एक बार प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन होने के बाद यानी कि ये सारे खर्चे जब हम इन पांचों में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, उसके बाद क्या करना है, इसके हिस्से में जो भी कॉस्ट आए होंगे सर्विस डिपार्टमेंट के, उनको फिर से हमको रिडिस्ट्रीब्यूट करना है अमंगस्ट ऑल द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, जिसको हम लोग ने बोलते हैं सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन, जो हो गया, जो कि हम लोग ने अभी अभी जस्ट किया. और सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए जो बेसिस है वो यहाँ पर दे रखा है, 9:6:5 है स्टोर्स के लिए एंड 2:3:1 है रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस के लिए. ठीक है, तो सिंपल सम है लेकिन थोड़ा सा लेंदी हो सकता है क्योंकि कैलकुलेशन बहुत ज्यादा है. प्राइमरी भी करना है, सेकेंडरी भी करना है, लेकिन यूजुअली एग्जाम में ऐसे ही समझाते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन साथ में करने के लिए बोलते हैं. सो टिपिकल एग्जाम क्वेश्चन है, बोल सकते हैं ट्रेडिशनल एग्जाम क्वेश्चन. यूजुअली दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर we get to see in the exams. So I'll again start preparing my format. Okay, okay, ऊपर वाला तो अभी कुछ काम का नहीं, उड़ा देता हूँ. क्या हो गया? Okay. How many columns will we require? Well, we've got total 5 department. Oh my God, so many columns. 5 columns for 5 department, 1 column for total, one for basis, and one for particulars. जगह नहीं है भाई. एक, दो, तीन, चार, अरे 5. टोटल क्या करेंगे, इसको थोड़ा ऐसा कर लेते हैं और फिर यहाँ पे एक कॉलम यहाँ पे बढ़ा देते क्योंकि उस तरफ तो जगह ही नहीं है. Okay, so finally we're done with all the columns and stuff. What is wrong? इसलिए मैं आई रिकमेंड के क्वेश्चन अगर आप लोग के पास होगा तो क्या मैं ये पूरा स्क्रीन जो है इस वाले पार्ट में रखूँ, सॉल्यूशन वाले पार्ट में, एंड आई कैन यूज द फुल स्क्रीन. बट अगर क्वेश्चन नहीं होता है तो क्वेश्चन भी रखना पड़ता है स्क्रीन पे, जगह कम पड़ता है. particulars, basis, total, and then various departments like
ठीक है, मशीन है, एंड देन assembly, and then finishing, stores, repairs. ठीक है, okay, the last two being service department and the other are production department. फाइन, एक एक करके एक्सपेंस लिखते जाते हैं। पहला है कंज्यूमेबल स्टोर्स, तो उसको लिख लेते हैं। कंज्यूमेबल स्टोर्स, कंज्यूमेबल स्टोर्स के लिए करेक्ट बेसिस क्या होगा? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, एरिया, एसेट्स वैल्यूएशन, एचपी इनटू आवर इनटू एलएस। ठीक है, तो इसमें से करेक्ट बेसिस क्या होगा फॉर कंज्यूमेबल स्टोर्स? वेल, तो स्टोर्स आर डायरेक्टली रिलेटेड टू डायरेक्ट मटेरियल। ठीक है, मटेरियल का ही दूसरा नाम स्टोर्स भी होता है। तो हम लोगों को यहाँ पर डायरेक्ट मटेरियल को हम लोग एज अ बेसिस ले लेंगे। डीएम लिख रहा हूँ यहाँ पे, यानी कि डायरेक्ट मटेरियल। और आप अगर यहाँ पे देखेंगे तो हम लोगों को है ना डायरेक्टली परसेंटेज दिया हुआ है, मतलब कि हमको वो प्रपोर्शन वगैरह ये जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला करते थे वो करने की जरूरत ही नहीं है। सीधा आपको जो गिवन एक्सपेंडिचर है उसको इस परसेंटेज के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। जैसे कि हमारा टोटल एक्सपेंडिचर है ऑफ कंज्यूमेबल सोर्स 15,400 रुपीज, उसका 34% निकालेंगे तो हमको मशीन का हिस्सा मिल जाएगा। ठीक है, उसका 39% निकालेंगे तो हमको असेंबली का पोर्शन मिल जाएगा। सो यू हैव टू जस्ट मल्टीप्लाई द एक्सपेंडिचर विद द गिवन परसेंटेज एंड यू विल बी एबल टू फाइंड आउट द एक्चुअल एक्सपेंडिचर फॉर दैट पर्टिकुलर डिपार्टमेंट। तो मशीन का अगर वर्कआउट करेंगे तो इट विल कम टू 5200, असेंबली का 6000 एंड फिनिशिंग का 2000 आएगा। क्या किया, सिर्फ ये परसेंटेज को अप्लाई कर दिया 15,400 के ऊपर। ठीक है, स्टोर्स के हिस्से में कितना परसेंट बोला है? 4% बोला है, तो 15,400 का 4% निकालेंगे तो 600 आएगा। रिपेयर्स के लिए 10% बोला है, तो वो तो ओरली हो जाता है 10%, तो दैट इज 1540, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। इन लोगों ने क्वेश्चन में गलत वर्क, अगर जो लोग टेक्स्ट बुक लेके बैठे हैं तो टेक्स्ट बुक में एक्चुअली दे वर्कड आउट 10% एज 1,600, which is not correct. 10% comes to 1,540. So you all be aware over there in the question, the calculation is not right for repairs. फाइन, तो पहला वाला एक्सपेंडिचर हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब दूसरा वाला एक्सपेंस वो है सुपरविजन का एक्सपेंडिचर, जिसके लिए अगर हम लोग इसमें से बेसिस देखेंगे तो सुपरविजन यूजुअली हम लोग करते हैं फॉर अवर वर्कर्स। तो यहाँ पर वर्कर से रिलेटेड जो चीज दी गई है वो है डायरेक्ट वेजेस, जिसको हम लोग यहाँ पे एज अवर बेसिस कंसिडर कर लेंगे। सुपरविजन जो है वो है 22,800 रुपये, जिसको हमको डिस्ट्रीब्यूट करना है हमारे अलग अलग डिपार्टमेंट में। और यहाँ पे भी सिंपलिसिटी के लिए परसेंटेज ही दे दिया है सीधा। तो मशीन शॉप में 35%, तो 35% ऑफ 22,800 आपको वर्कआउट करना है, तो आपको आ जाएगा 7,900। फिर शॉप के असेंबली शॉप के लिए 39% यू टू टेक ऑफ 22,800, दैट विल कम टू 5,100। डूइंग द सेम फॉर फिनिशिंग डिपार्टमेंट्स, तो वहाँ पर 13% है, that will come to 6,100। and then कुछ गड़बड़ तो नहीं किया मैंने? 35%, 22%, 27%। ठीक है, अब 10% निकालना है। 10% of 22,800 would be यहाँ पर भी उन्होंने 10% जो है गलत वर्कआउट किया है।
दैट इज 10,22,800 का जब हम लोग 10% निकालते हैं तो 2280 आना चाहिए वो मेरे हिसाब से। करेक्ट है ना। फिर रिपेयर्स का निकालेंगे। आई डाउट द कैलकुलेशन और टेक्स्ट बुक दे बहुत सारी मिस्टेक्स है, तो आई वुड अर्ज ईच एंड एवरीबॉडी जो लोग भी टेक्स्ट बुक लेकर के भी बैठे वो कैलकुलेशन में भरोसा ना करे और खुद का कैलकुलेशन करते रहे साथ में। पर मेरे पास अभी फिलहाल कैलकुलेटर नहीं है, तो मेरे को टेक्स्ट बुक के कैलकुलेशन के भरोसे रहना पड़ रहा है। यहाँ पर 1500 आएगा, मतलब टेक्स्ट बुक में 1500 लिखा है तो मैं 1500 लिख रहा हूँ। आई एम नॉट श्योर इफ इट इज करेक्ट। फिर जो नेक्स्ट एक्सपेंडिचर है, यस वी हैव टू राइट द राउंडेड ऑफ अमाउंट, डेसिमल्स लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। अगला जो खर्चा है वो है रेंट एंड रेट्स। कौन सा? 5236 फॉर 31%। अच्छा, हाँ तो जो आ रहा है वही लिखना है, वही लिखना है। मैंने ये कैलकुलेट खुद से नहीं किया है, 5200 जो है मैंने नहीं कैलकुलेट किया है, वो टेक्स्ट बुक में से देख करके मैंने लिखा है। तो मुझे डाउट है टेक्स्ट बुक के कैलकुलेशंस करेक्ट नहीं होंगे, बहुत मिस्टेक्स है टेक्स्ट बुक के कैलकुलेशन में। तो हो सकता है आपका सही हो, अगर आपका 5236 आ रहा है तो आप वो कंसिडर करिए। अगला एक्सपेंस जो है रेंट है। रेंट जो है उसके लिए अपन जो बेसिस लेंगे वो एरिया को ले सकते हैं, क्योंकि एरिया के हिसाब से रेंट लगता है। जिस डिपार्टमेंट में जितना ज़्यादा एक्सपेंड एरिया ऑक्यूपाई कर रखा है वो ज़्यादा रेंट पे करेगा। ठीक है, टोटल एक्सपेंस जो है रेंट का वो है 10,000 रुपये, जिसको हमको डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो एरिया के लिए वो लोग ने स्क्वायर फुट का इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि भाई मशीन ने 5250 स्क्वायर फुट जगह लिया है, असेंबली ने 3500 एंड सो ऑन। तो हमको क्या करना है, उन सारे स्क्वायर फुट को हमको ऐड कर देना है, जैसे हम आगे वाले सम में भी करते थे। तो ये जो सारे जो ऐड 5250 3500 4375 सब है ऐड कर देंगे, तो टोटल कितना आएगा, ऐड किसने किया गया। तो एरिया, रेंट का एरिया ऐड करना पड़ेगा। 17,500 आ रहा है टोटल। ओके, ठीक है, वेरी गुड, किसी ने वर्कआउट कर लिया है। थैंक यू किंजल एंड शिवम। तो उन्होंने टोटल बता दिया कि टोटल एरिया जो है सब लोग ने मिलकर के टोटल एरिया जो ले रखा है वो है 17,500 स्क्वायर फीट। और 17,500 स्क्वायर फीट के लिए हम लोग को 10,000 रुपये का रेंट चुकाना पड़ रहा है। अब हम लोग एक एक डिपार्टमेंट का कर सकते हैं। तो मशीन डिपार्टमेंट जो है उसने कितना जगह ले रखा है, उसने जगह लिया है सिर्फ 5,250 स्क्वायर फीट। तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके पता कर सकते हैं, जब 17,500 स्क्वायर फीट के लिए 10,000 लगता है तो 5,250 स्क्वायर फीट के लिए कितना रेंट चार्ज किया जाना चाहिए। दैट कम्स टू ₹3,000 फॉर मशीन डिपार्टमेंट, है ना। उसी तरीके से आपको बाकी के सारे डिपार्टमेंट के भी करने हैं आए, है ना। तो ये 3,000 रुपये मशीन के लिए आ गया। फिर असेंबली के लिए भी उसी तरीके से आपको वर्कआउट करना है, तो उसका आ जाएगा आपका 2,000 रुपये। फिर फिनिशिंग के लिए कितना आएगा। नील अहमद ने सही आंसर दिए, सारे आंसर सही दिए। 2,500 रुपये फिनिशिंग का, वेरी गुड नील अहमद। स्टोर का 1,000। अरे गड़बड़ है, नहीं बराबर बराबर, स्टोर का 1,000 करेक्ट है। एंड 1,500 for repair. Kinjal, what you are trying to tell, I am not able to understand. अच्छा, मशीन का 4,000 आएगा ऐसा बोल रही हो तुम? कोई कैलकुलेट करके चेक कर लो ना, मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है। इज दिस 4,000 और व्हाट? बाकियों का क्या आ रहा है? वो तो शिवम ने तो, नील अहमद ने 3,000 बताया मेरे को, शिवम ने भी 3,000 बताया, शिवानी भी 3,000 ही बोल रही है। तुम्हारी अकेले का क्यों 4,000 आ रहा है? एक बार कैलकुलेशन चेक कर लो ना, ये कैसे तुम्हारा 4,000, बाकियों का तो 3,000 आ रहा है।
क्या किया है आपने भाई? ये इस तरीके से करना था आपको मशीन का 17,500 5250 इंटू 10,000 डिवाइड बाय 17,500 करो ना तो 3,000। ओके नाउ शी इज सेइंग ओ शिट आई एम सॉरी इट्स 3K। फाइन फाइन फाइन, चलो कोई बात नहीं, होता है। या इट्स ओके। चलो तुमने करा वही बड़ी बात है, अच्छी बात है। तो आगे आज आ जाते हैं हम लोग। फिर अगला अगला एक्सपेंस क्या है? रेंट के बाद कौन सा एक्सपेंस है भाई? कौन सा है जल्दी बताओ। रेंट के बाद है इंश्योरेंस। तो इंश्योरेंस को भी डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। इंश्योरेंस, इंश्योरेंस का हम लोगों को बेसिस सिलेक्ट करना होगा। अब इंश्योरेंस किस चीज का निकलता है? तो इंश्योरेंस मशीनरी का निकलेगा। तो मशीनरी के वैल्यू पे हमको उसको डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। तो इसलिए हम लोग उसको एसेट की वैल्यू के बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। एसेट वैल्यू, क्योंकि हम लोग इंश्योरेंस एसेट का इंश्योरेंस निकालते हैं, राइट? तो वी कैन डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ एसेट। अच्छा यहाँ पे मैं एक बात और बता देना चाहता हूँ, है ना, इंश्योरेंस का है ना और भी बेसिस हो सकते हैं। अब डिपेंड करता है कि आप उसको क्या कंसिडर करके चल रहे हैं। आप उसको एम्प्लॉय इंश्योरेंस अगर कंसिडर करते हैं तो नंबर ऑफ वर्कर्स या फिर डायरेक्ट वेजेस को बेस लेके कर सकते हैं। अगर आप उसको मशीनरी का इंश्योरेंस कंसिडर करते हैं तो आप उसको एसेट वैल्यू के बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। अगर आप उसको स्टॉक का इंश्योरेंस कंसिडर करते हैं तो आप डायरेक्ट मटेरियल को भी कंसिडर कर सकते हैं एज बेसिस, क्योंकि क्वेश्चन में क्या है, सिर्फ इंश्योरेंस बोल के छोड़ दिया है, किस चीज का इंश्योरेंस है वो बताया नहीं है। और इंश्योरेंस तो 50 तरीके के हो सकते हैं। तो हमारे ऊपर है, हमको जो अज्यूम करना है हम उसके बेसिस पे सही बेसिस सिलेक्ट करके उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में हम उसको मशीन का या फिर एसेट का इंश्योरेंस कंसिडर कर रहे हैं, अज्यूम कर रहे हैं, इसलिए हम उसको एसेट की वैल्यू के बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। और जब हम कोई असम्पशन लेते हैं तो इट इज अवर ड्यूटी, इट इज अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि क्वेश्चन खत्म होने के बाद नीचे एक फुटनोट लिख दी जाए कि भाई ये एक्सपेंस को इसके बेसिस पे क्यों डिस्ट्रीब्यूट किया है। ठीक है, ताकि कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, कोई क्वेरी नहीं बचना चाहिए एग्जामिनर के दिमाग में भी। ठीक है, तो इंश्योरेंस टोटल कितना है भाई? टोटल है 2,000 रुपये। चलो फटाफट से इसका बताओ, बताओ कितना आ रहा है? क्या कर रहे हैं सब लोग? कितना आएगा बताओ? किंजल, शिवम, शिवानी, नील अहमद, किधर गए सब लोग? क्योंकि इसको हम लोग ने एसेट वैल्यू को बेसिस कंसिडर किया है, तो हम क्या करेंगे, एसेट्स की वैल्यू का टोटल ले लेंगे। अब एसेट्स क्या है? 2 लाख है, 2,25,000, 50,000, 1,00,000, 12,500, 12,500, सबका अगर टोटल ले लेंगे हम लोग और उसके बेसिस पे हमको वर्कआउट करना पड़ेगा। सो इफ यू वर्कआउट द वैल्यूज फॉर मशीन इट इज गोइंग टू बी 800। यस, अभी सबके आंसर आ गए, वेरी गुड। 800 है। उसके बाद फिर असेंबली के लिए 900 है, और फिर फिनिशिंग डिपार्टमेंट के लिए 200 है, और स्टोर्स के लिए 750। एंड अरे सॉरी 50 है, आई एम सो सॉरी, इट इज जस्ट 50 नॉट 750। अरे यार, एंड अगेन 50। ठीक है, तो करेक्ट करेक्ट आंसर दिया है, मनोज ने भी करेक्ट आंसर दिया है। ठीक, तो इंश्योरेंस को हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब अगले एक्सपेंस पे आते हैं। अगला एक्सपेंस है डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन में तो कोई भी अजम्पशन वगैरह की सवाल ही नहीं आता, डेप्रीसिएशन एसेट के ऊपर ही लगता है, तो एसेट वैल्यू को ही बेसिस कंसिडर करके उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। 30,000 का डेप्रीसिएशन का खर्चा है, तो उसको एसेट वैल्यू के बेसिस पे अगर हम लोग एलोकेट करेंगे तो कितना आएगा? वेल, फॉर मशीन शॉप इट विल कम टू 12,000। For assembly, it will come to 13,500. For finishing, it will come to 3,000. For stores, 750. एंड फॉर रिपेयर 750। देखो ऐसा है कि लेक्चर जो है फिजिकली हो नहीं रहा है, वर्चुअल लेक्चर्स हो रहे हैं, जहाँ पे मैं आप लोग को देख नहीं पा रहा हूँ, कोई कनेक्शन नहीं हो पा रहा है। तो जब तक कोई कुछ बोल नहीं रहा है, कोई कुछ पूछ नहीं रहा है, कोई रोक नहीं रहा है, तो मैं यही अज्यूम करके चल रहा हूँ कि आप लोगों को समझ में आ रहा है कि मैं क्या समझा रहा हूँ और सम में कैलकुलेशन कैसे हो रहे हैं। इन केस अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो रोक करके पूछ लो, मैसेज चैट में डाल दो, अपने हाथ रेस कर सकते हो। ठीक है, डाउट्स क्लियर कर दिए जाएंगे सारे। तो बोलेंगे तो मालूम पड़ेगा, नहीं तो मैं तो यही अज्यूम करके चल रहा हूँ कि भाई सबको सब समझ में आ रहा है। वेरी गुड, यस, किंजल ने फिर से आंसर सही दिया है, करेक्ट आंसर है।
उसके बाद अगला एक्सपेंस किंजल, अभी डिप्रेशन हो गया, पावर का बता, पावर का बता। अगला एक्सपेंस पावर है। पावर के लिए बेसिस क्या लेंगे हम लोग, एच पी इंटू आर इंटू एल एफ वाला जो बेसिस दिया है ना वो ले लेंगे, ठीक है, इंटू एल एफ करके कुछ बेसिस दिया है उसको ले लेंगे। और पावर का टोटल खर्चा कितना है, 9,000 रुपये है, तो उसको हम लोग को डिस्ट्रीब्यूट करना है अमॉन्ग्स्ट ऑल द डिपार्टमेंट्स। तो कितना आएगा बताओ, जल्दी बताओ। पावर का एक्सपेंस है 5,400 फॉर मशीन, क्योंकि वहां पर उतना यूनिट्स पर एचपी कंज्यूम हुआ है। फिर असेंबली में 3,600 है। और अगर आप देखेंगे तो ये जो मशीन आवर्स वाला जो बेसिस है वो सिर्फ मशीन शॉप एंड असेंबली शॉप के लिए ही दिया है। उसका मतलब क्या हुआ कि फिनिशिंग डिपार्टमेंट, स्टोर्स एंड रिपेयर्स में पावर कंज्यूम हुआ ही नहीं है, कोई भी एचपी कंज्यूम हुआ ही नहीं है, इसलिए वहां पर पावर का एक्सपेंस एलोकेट नहीं होने वाला है। पूरे 9,000 जो है वो इन दोनों में ही हम लोग ने रिकवर कर लिए। लास्ट एक्सपेंस जो है वो बचता है लाइट एंड हीट। तो लाइट एंड हीट हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ एरिया, जहाँ पे जितना बड़ा एरिया होगा वहाँ पे ज्यादा लाइट का खर्चा आएगा, कम एरिया में कम लाइट का खर्चा आएगा। तो एरिया के बेसिस पे उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और टोटल खर्चा जो है वो 4,000 रुपये का है। तो अगर आप उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अमॉन्ग्स्ट द वेरियस डिपार्टमेंट्स, it is very unfortunate to see that only out of 31 students attending, only 5 to 6 students are calculating actively. I don't know what the others are doing, क्योंकि क्या है एमकॉम में अटेंडेंस वगैरह तो कंपलसरी है नहीं, तो फिजिकल में बैठ के लेक्चर अटेंड करके कोई अटेंडेंस तो मिलने वाला है नहीं। तो आई जस्ट होप कि जो बाकी के लोग सुन रहे हैं वो लोग एक्चुअली में उसको समझ रहे और सॉल्व कर रहे, तो ही इट इज वर्थवाइल, अदरवाइज ऑल कैन सेव योर टाइम डूइंग बेटर थिंग्स। एनीवेज, कमिंग टू आवर प्रॉब्लम, लाइट एरिया का जो 4,000 का जो खर्चा है मशीन में जो लग रहा है वो है 1,200 रुपये, ठीक है। असेंबली में जो लग रहा है 800 रुपये आएगा। फिनिशिंग में 1,000 रुपये, जो डिस्ट्रीब्यूटेड खर्चा बता रहा हूँ मैं, 400 रुपये और 600 रुपये। वेरी गुड, थैंक यू मैडम। श्वेता मैडम ने बोला है कि वो भी कैलकुलेट कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। तो बताओ ना यहाँ पे, शेयर योर आंसर्स, नो करेक्ट अवर आंसर। हम लोग गलत गलत कैलकुलेशन कर रहे हैं, आप अपना कंट्रीब्यूशन दो यहाँ पे, तो हमको मालूम पड़े कि हमने गलत कैलकुलेशन किया है। ओके, आई वाज जस्ट जोकिंग, रिलैक्स, फाइन, हैप्पी टू सी दैट यू आर कैलकुलेटिंग। ठीक है, मेरे यहाँ पे आंसर्स जो है वो करेक्ट है, बाकियों ने भी यही आंसर दिए। कूल। नाउ व्हाट आई वांट इज द ग्रैंड टोटल। हमने सारे एक्सपेंसेस हमने एलोकेट कर दिए, मुझे यहाँ पे टोटल ओवरहेड्स चाहिए। टोटल ओवरहेड्स कोई मेरे को वर्कआउट करके बता दो कितना हो रहा है, ठीक है। टोटल ओवरहेड्स बता दो, टोटल ओवरहेड्स, सो दैट हमारा प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन खत्म हो जाए। यहाँ पे टोटल का टोटल बता दो, मशीन का बता दो, असेंबली का बता दो। मेरी आवाज क्लियरली नहीं आ रही है? आर इज एवरीबडी फेसिंग द सेम प्रॉब्लम? It's okay, no problems, no problems. Even if the others are giving answers, you can still give your answers. Doesn't matter whether you're first or last. Just give out your answers. It feels good to see that people are solving. Okay. अनन्या, शायद तुम्हारे यहाँ पे नेटवर्क इशू है, बाकी लोगों को तो आवाज मेरी क्लियर आ रही है। जस्ट चेक वेदर यू हैव अ प्रॉपर कंसिस्टेंट कांस्टेंट नेटवर्क, ठीक है। टोटल ये 35,616 बताया है शिवम ने, बट एक कौन से डिपार्टमेंट का बताया वो मुझे नहीं मालूम। मशीन का बताया है शायद, क्योंकि टेक्स्ट बुक में 35,000 दिया है। थोड़े बहुत राउंडिंग की वजह से ये शायद फर्क आ रहा है। तो मैं यहाँ पे अभी लिख तो रहा हूँ 3135616, लेकिन आप देख लेना बाकी लोग उनके उतना आंसर आ रहा है कि नहीं। और इसका आंसर भी दे दिया है, 93,200 आ रहा है, ठीक है। असेंबली का जो है टोटल है 31,822 आ रहा है, ठीक है। फिनिशिंग का कितना आ रहा है? फिनिशिंग ओ भाई, फिनिशिंग का ये आंसर लोग अलग अलग, तुम लोग के आंसर थोड़ा डिफरेंस आ रहा है लोगों के आंसर्स में।
बट मोर और लेस आंसर्स आर क्लोज टू ईच अदर। फिनिशिंग का क्या है? फिनिशिंग 14,858। अरे भाई इतना फर्क। शिवम इज सेइंग 14,858, शिवानी इज सेइंग 12,158। 2,000 का फर्क, इतना इतना डिफरेंस कैन नॉट बी टेकन, नहीं तो आंसर गलत हो जाएगा। आई गेस इट इज 14,858 होना चाहिए। शिवानी एक बार तुम अपना कैलकुलेशन चेक कर लो, शायद तुमने वो 2,000 रुपये मिस कर दिया है। ये वाले जो 2,000 है वो तुमने कहीं मिस तो नहीं कर दिए, चेक कर लो। स्टोर्स का बता दो, स्टोर्स का। नील अहमद ने सारे टोटल एक साथ बता दिए, वेरी गुड। नील अहमद के हिसाब से स्टोर्स का जो टोटल है वो है, यस गायत्री करेक्ट है, करेक्ट है टोटल तुम्हारा। उसके हिसाब से स्टोर्स का टोटल जो है 5,096 है, तो मैं वो लिख देता हूँ यहाँ पे 5,096। आई होप बाकियों का भी यही आए। और रिपेयर्स का नील अहमद ने दिया है 6036, बाकी अभी तक उधर तक पहुंचे नहीं है। गायत्री ने, अरे फर्क आ गया आंसर में तुम्हारे गायत्री, रिपेयर में तो, बट सबका वही आ रहा है 5940 आ रहा है। नील अहमद योर आंसर इज नॉट राइट और व्हाट? देख लो इसके आसपास में सबके आंसर आ रहा है, क्योंकि क्या है ना यार, मैंने तो टेक्स्ट बुक के फिगर्स यहाँ पे लिख दिए, हो सकता है आप लोगों ने खुद खुद के फिगर्स कैलकुलेट करके लिखो, तो आपके फिगर्स रियल वाले फिगर्स मैच नहीं कर रहे होंगे, तो थोड़ा बहुत उसके आसपास में फिगर आ रहा है। जैसे यहाँ पे मैंने 6036 लिखा है, किसी का यहाँ पे इसके बदले 6834 भी आ रहा है, और यहाँ पर किसी का 5940 भी आ रहा है। तो सबके अलग अलग आंसर थोड़े बहुत इसलिए आ रहे हैं क्योंकि टेक्स्ट बुक में गलत आंसर दिए, गलत फिगर्स दिए। सो दैट इज फाइन। यस शिवानी यस फाइनली गॉट द राइट आंसर। श्वेता ने भी करेक्ट आंसर दिया है। यस श्वेता करेक्ट आंसर। मनोज का भी आंसर करेक्ट है। थोड़े बहुत डिफरेंस आ रहे हैं, वो मैं समझ रहा हूँ राउंड ऑफ की वजह से डिफरेंस होंगे, ठीक है। इसके साथ हमारा जो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन वाला जो पार्ट है, पार्ट ए जो उन्होंने पूछा था, वो हमारा हो गया है। अब हमारा पार्ट बी करना बाकी रह गया, बट क्या है कि आई गॉट वन मोर मीटिंग विच इज ऑल्सो देयर। सो मैं उसको भी, मतलब मैंने क्या किया, दोनों को थोड़ा थोड़ा टाइम दे दिया, आपको थोड़ा थोड़ा उनको, ताकि दोनों में से किसी का भी कंप्लीट लॉस ना हो। तो आई एम सॉरी फॉर दिस इनकन्वीनियंस दिस टाइम, इट वोंट हैपन नेक्स्ट टाइम। तो अगले टाइम पे हम लोग 2 घंटे का लेक्चर लेंगे। फिलहाल के लिए मेरे को ये सेशन यहीं पे रुकना पड़ेगा। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। अगर कोई डाउट, कुछ क्वेरी, किसी को कुछ पूछना रह गया है तो अगले लेक्चर है पूछना। अगले लेक्चर में पहले हम लोग ये वाला सम पूरा कर लेंगे, इसका जो सेकंड वाला पार्ट है, पार्ट भी वो पूरा कर लेंगे। जो कर पा रहे हैं वो लोग करके रखे इसको, जब हम लोग करेंगे तो उसके साथ वेरीफाई कर लेना सही क्या है गलत क्या है। एंड मैं ये भी बोलना चाहता हूँ कि हो सके तो टेक्स्ट बुक खरीद लो, तो ज्यादा कन्वीनियंट होगा इस सब्जेक्ट को करने के लिए, ठीक है। सी टिल देन वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर, और इसको वहीं पे कंटिन्यू करेंगे। टेक्स्ट बुक मनन प्रकाशन का लेना है, मनन प्रकाशन पब्लिकेशन हाउस, ऑथर आईना पूरे, उसका टेक्स्ट बुक ले लो। नंबर ऑफ इलस्ट्रेशन वहाँ पे बहुत सारा है। सेट का भी ले सकते हैं, बट व्हाट आई एम प्रीफरिंग इज मनन प्रकाशन। मैं खुद भी वही यूज कर रहा हूँ, तो क्या है, आपके और मेरा टेक्स्ट बुक सेम रहेगा तो कोऑर्डिनेशन अच्छा हो पाएगा। तो आई सजेस्ट मनन प्रकाशन ही ले लो, ठीक है। हाँ, नया पुराना कोई भी लो एक ही बात है, टेक्स्ट बुक सारे सेम ही है। पुराना ऑडिशन भी यही, एडिशन लो मनन का या नया एडिशन लो चलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। सम सारे के सारे वही, एक आध दो सम आगे पीछे, दैट इज इट, ठीक है। तो सी यू ऑल इन द नेक्स्ट लेक्चर। आई विल एंड द सेशन ओवर हियर। बाय बाय।